म्हणजे त्या साईडला काय करता येईल का? येऊन ते कंपाऊंडच्या पलीकडे करा गोष्टी नाही, पण तिथं माल कसं नेणार? पण ते गाडी सोडत नाही ना. तर तिथून गाडी जाणार नाही ना, मग खांद्यावर न्यावं लागेल. त्याला सांग गोष्टी द्या म्हणून सांग. ये खोलूं क्या? हाँ? मौसी? क्या? हाँ? खोलूं क्या फिर? खोलूं क्या? खोलूं क्या? खोलूं क्या? खोलूं क्या? मम्मी को पापा को दो, पापा को दो, राजेश बंसल।
We'll wait for 5 minutes more and then we'll start. Okay. Hello everyone, a very happy Leo day to all. Hello Omkar. Hello, Ratu aunty. If you want, you can come down and join with me. Okay, I'll do that. Yeah, please do that. Hello, Ritu. Hello. Looking great energy. Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir.
6:15 बज गए, मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए हमें। So shall I start? हाँ शुरू करते हैं। हित Yes. शुरू करो। Just a second. पहले Yes. तो अपना वीडियो ऑन करो। नाउ स्टार्ट। Hello, good evening, good afternoon, Lions and Leos. So today I welcome you for the Leo Day and celebration of a Leo Day. Today we have Lion Ravi Golar, Region Chairperson, Region Ganga Chairperson with us. Lion Rajesh Bansal, Zone Chairman, Zone 2, President LCP Agrasen, and all the Leo presidents and secretaries here. Leo advisor Ritu Garg. Now I shall first do the Leo pledge. I pledge on my hands, extended and open, to help those in need. I pledge of my heart, reach for it, and it will be touched. I pledge of my ears, to hear another's outcry, my ears to see the plight of others, my eyes to see the plight of others, my knowledge to bring a person closer to the dreams. I pledge of myself for the betterment of my community. Now we shall start with the main program. The presentation by Leo President Shubh Agarwal of Leo Club of Agrasen, Little Champs. Hello friends, I welcome you all to the Leo Club celebration, Leo Day celebration today. Shubh, you are muted. Shubh, are you there? I think Shubh is disconnected. I'll connect him again. Shubh? Shubh, start your camera. Oh, actually, I have a network issue, so I'll join in 5 minutes. Just checking Okay, it sure, out. no problem. No problem. I shall present my presentation right now till when he's getting ready with his network. Yeah, okay, start. Good afternoon, all. I'm Heath Bansal, Leo Heath Bansal, president of Leo Group of Club of Aggression.
Happy International Leo Day. It was started on 5th 12 1957. First Leo Club was chartered in USA. For the past 63 years, the Leo movement has continued to grow into a network of over 7,000 clubs in 145 countries. When Leos and Lions serve together, the impossible becomes possible. This day, we recognize the immense contribution of our Leos as they reach out the less fortunate among us. Let us continue to support our Leos by encouraging and supporting them in their quest for improving their leadership skills, seeking new experience, and opportunities for services. Thank you. Now, रितु जी आप म्यूट हैं. Tanay, put spotlight on Hit. thank you. Okay. Okay. Okay, that's better. All right, Hit, unmute. Hit, you are visible and audible. Please start. Yes, now I shall call upon the Leo advisor Ritu Garg for the presentation of the club. Wait. Your presentation end is. Yes, I yes. think it is little. You cut down little more. I wasn't audible. Last 3-4 line you need to read again. Okay, I shall read it again. Yeah. Let us continue to support our Leos by encouraging and supporting them in their quest for improving their leadership skills and seeking new experiences and opportunities for services. Now, I shall call upon Leo advisor Ritu Garg to present their representation for the club. Thank you, Kate. Ritu, Thank you ma'am, so much. Yeah. your place. Thank you. A very happy Leo International Day to all of us here. And a big thank you to all the seniors who have joined us today for encouraging us all. I'm very happy that we have our 3 host clubs together today. And I extend a very warm welcome to everyone. Now about our club, my name is Ritu Garg and I'm an advisor of the Leo Club of Katha Play. What we essentially do is we do everything in Katha Play through dramatics. Through dramatics, this is our president, Onkar Lala, and he'll tell you what we do through dramatics in Leo Club of Katha Play. Social services, social responsibilities, and public speaking skills. Yeah. So basically, Sir and Lions, what we essentially try to achieve in Leo Club of Katha Play is developing social skills, social responsibilities in children of younger age. We have started with younger children. Our club has children from 12 to 18 years of age, and we work a lot on building them as better citizens for the country. We build in them social values and we encourage them to follow their responsibility. And we also make a lot of videos, a lot of theaters, of which we have made one called Incredible India, which we would like to present to all of you, if that's okay to do now. Hit, please let me know. Yes, ma'am, you shall start with the video. Okay. Just to give you a glimpse. Continue.
at Katha Play. You'll have to enable my screen sharing it. Rituji, Yeah, just a minute. you continue, please. Just a minute. I'm giving you the. Tanay, Yeah. Tanay, Okay. make Rituji co-host. Done. She need to share screenplay. All Yeah, right. yes, Screen. sir. I got it. Yeah, you are co-host now, Ritu. Are you all able to see my screen? Yes, ma'am. Yes. So this is it is also the responsibility of Leo clubs to make every child very proud of their own country, so that they feel responsible and they feel their duties very seriously. So this is what we have done in this video. We have tried to make them proud of our incredible India. Here it is for all of you. Is it audible? Yes, ma'am. Namaste. Come with me to explore the flavors and colors of incredible India. Indian Armed Forces. We are proud of our forces that protect the land, water, and sky. Our Indian Army is one of the strongest armies in the world. Our Air Force is even more stronger with repellents. Our Indian Navy proudly owns INS Shivalik, INS Virat, INS Samudri. Our Independence Day is full of patriotism, and behold our freedom fighters high in spirit. Our Indian flag is fearless to us, symbolizing sacrifice, peace, and right, prosperity, and peace. I salute my flag. Jai Hind. Field of being our national sport. We have won 8 gold medals. Kabaddi is our indigenous sport played across the country. Yes, we love cricket. Yes, we do. Kapil Dev, Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, MS Dhoni, and Virat Kohli. There is no end of cricket legends from India. We have won 2 ODI ICC Cricket World Cup, 1 T20 World Cup, and India aspires for more. Wildlife of India. India is one of the most biodiverse regions in the world. You may want to take an Indian safari tour to see the Indian elephant, the Indian rhinoceros, the famous Indian hornbill, the Bengal tiger, and of course, the Asiatic lion too. And the national bird of India, peacock. When it dances in the forest, it has to rain. They hold 37 festivals spread throughout the year. States, religions, and occasions. Harvest festivals like Lodi and Onam. Celebration of colors on Holi. Celebration of the moon on Eid. Celebration of good over evil on Dussehra and Durga. Celebration of lights on Diwali. And we also go full out to rejoice Christmas. Traditional clothes of India. Start getting ready for occasions, and we have an amazing wardrobe of traditional clothes. Most popular is sari kurta that can be worn in 7 different ways, and kurta pajama hoge. Not to forget sherwani, dhoti, and a pakris. Don't you love this lehenga, this suit, this anarkali? No one can beat the taste of Indian spices and the unimaginable spread of Indian dishes. Butter chicken, buttermilk, naan, dosa, lentils biryani, Indian burger vada pav, and sweet spongy rasgullas have captured the taste buds all over the world. You cannot miss an Indian restaurant around the corner, can you? As for India, in India, we have more than 15 amazing dance forms. Each one of them is unique, extremely researched, and evolved. I will present 2 of them. Bihu from Assam. It is slow,
City celebrates harvest season. Bhangra from Punjab is full of energy, colors, and happiness. Hope to see you soon in India. Thank you. I hope you all enjoyed the video made by the little children of Leo Club of Katha Play. As Heath said, that we have 7,000 Leo clubs in over 146 countries. Personally, I feel my children should be able to grow up as very, very proud Indians to be able to help the world. And then only we can make the whole world as beautiful as our country is. Thank you so much. I hand over to Kate again. Now I request Leo Shrey Bansal to give the introduction of Region Chairperson. Wait, Heath. What about Shub's presentation? शुभ का प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? Yes, sir. I am ready, sir. Yeah. Today, I, Leo Shobha Agarwal, President of Leo Club of Pune Little Champs, welcome you all to the celebration of Leo Club of Leo Day, International Leo Day. I humbly thank MJF Lion Ravindra Gola, Region Chairperson, to join us. Lion Rajesh Agarwal, District PRO, Lion Rajesh Bansal, President of Leo Lions Club of Pune Agrasen and Zone Chairperson, Leo Hit Bansal, President of Leo Club of Pune Agrasen and President and Advisor of Leo Club Katha Play. I thank you all once again to please to join us. Thank you. Now I request Leo Shrey Bansal to give the introduction of Region Chairperson Lion Ravi Gola. It gives me immense pleasure to introduce our very own dynamic personality, Lion Ravindra Gola, Region Ganga. He joined Lionism in year 2009-2010. He became a club president in year 2011-2012. He became a cabinet officer, secretary team in year 2014-2015. He was also a district chairperson of youth exchange program in year 2018 and 2019. And in current year, the region chairperson of Region Ganga. Our honored Ravindra sir has been highly awarded. I will be obliged to name some of them. He is a MJF, which stands for Melvin Jones Fellow. He's certified guiding lion for LCP Chaturshringi. He has also been an extension chairperson for LCP Karamveer. He was also awarded the Special Appreciation Award for Sarita Program Implementation, DG Appreciation Award for Faculty Region Ganga, Orientation Seminar in year 2020-2021. He is pharmacist by education. He worked with renowned finance companies for 4 years before starting business. His better half, Lion Smita Golar, she is postgraduate in microbiology and partner in their own firm. She is second vice president of LCP Chaturshringi. Her daughter, Leo Aditi, is in standard 7th. She is a topper in class and running champion. She is also secretary of a Leo club. He is very socially involved.
He is a very active member of CRY, active member of FinPro, life member of ISKCON. His business and personal achievements include Most Valued Partner, Used Car Business, TVS Credit 2016, Award of Appreciation from ICICI, Home Loan Improve Act Award, BNI, CRO Better Award by Chrysalis 2020. He has a very beautiful motto of life: be somebody who makes everybody feel like a somebody. Thank you. Thank you, Shreya Bansal ji. May I start now? Yeah, please, sir. Okay. Good evening, all. कैसे सब लोग? Unmute करो 1 मिनट के लिए. सब लोग बताओ, how are you? Very good, sir. मुझे चेहरे नहीं दिख रहे ना, तो मुझे ना मेरी भावना नहीं पहुंच रही है और आपकी भावना मुझ तक नहीं पहुंच रही है. If it is possible, keep your video on for 10-15 minutes. एक अगले 10-15 मिनट के लिए आपका वीडियो चालू रखो. तो तने सबको अनम्यूट कर दो. डन सर, मैंने सबको रिक्वेस्ट भेज सिर्फ गोलार सर को म्यूट करो. अरे क्या सर, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है. कोई टेक्निकल चैलेंज है? नो सर, मैंने सबको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया है. Okay. So first of all, I would like to say one thing which is very important for today, that today is a International Leo Day. So I wish all of you a very, very happy Leo Day. This is going to be a first meeting for 2 clubs. Leo Club of Agrasen, which is the largest club in the world, which is going to add so many members, 6,000 members, and going to be creating a record sort of. And another club, Leo Club of Little Champs, आज ये उनका भी पहला मीटिंग है. और लियो क्लब ऑफ कथा प्ले, मैं उनकी मीटिंग में शायद ये तीसरी बार है मैं उनकी मीटिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ. एंड इट इज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी अमंग विथ माय यंगर जनरेशंस. Friends, first of all, I'll take the protocols, and the protocol says the president today's presiding officer, Leo Bansal, Leo Club of Agrasen, Leo Shubh Agarwal, Leo Club of Little Champs, Leo Omkar Lala, Leo Club of Katha Play, Leo advisors who are present here: Neha Bansal ji, Ritu Garg ji, Rajesh Bansal, who is the president of Agrasen and my colleague zone chairperson, Rajesh ji Agarwal, who is a district PRO and a very, very inspirational personality and a guide. My colleague zone chairperson Kashinath ji Enpure is also here as a guest. Ritu Agarwal ji, Dhanashri Bansal, Neil Goyal, there are Tanay Agarwal, there are a lot of Leos and Lions have joined this meeting. So I welcome all of you on this occasion of Leo Day. Friends, this is the first time any region is celebrating the Leo activity or Leo Day. Okay. Today morning when we are coming back, we thought, although we are pretty late in planning, let us give a head on and see if our youth can manage activity within one day. हमको पता था कि आज 5 तारीख है और आज ही हमें ये प्रोग्राम लेना है, बट मैंने एक चैलेंज लिया था कि देखते हैं कि क्या हमारे लियोज इतने तैयार है कि वो एक दिन में भी एक्टिविटी खड़ी कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी, पूरे के पूरे रीजन के 6 लियो क्लब्स ने आज एक्टिविटी कैरी की. सो ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स गोज टू लियो पीएसटीज एंड द प्रेसिडेंट हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड देम, और जो लियो एडवाइजर्स है वो भी उतने ही उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में है, जिसकी वजह से आज पूरे 6 लियो क्लब्स एक्टिविटी ले रहे हैं. एक सुबह एक्टिविटी हुई फ्यूचर स्टार्स, जो मेरा होम क्लब है, लायंस क्लब पूरा चतुश्रुंगी, उसका लियो क्लब है. आज उन बच्चों ने एक अनाथालय ऑर्फनेज को विजिट किया और वहां पे विंटर वेयर्स और कपड़े दिए. यकीन मानिए 9 बैग्स फुल भर गई थी, इतने कपड़े जमा हो गए थे. और ऑल द क्लोथ्स इन अ वेरी गुड कंडीशन, फ्यू ऑफ देम इन अ न्यू कंडीशन. कुछ विंटर वेयर्स थे और कुछ ब्लैंकेट्स थे. ये सब हमारे बच्चों ने डोनेट किया. साथ में रेशन दिया, साथ में चॉकलेट्स दिए, साथ में टॉयज दिया, और उनके साथ कुछ समय बिताया. वो जो ऑर्फन्स बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनके साथ समय बिताया. उनके जो स्किल्स है वो समझे, उनके साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया. और उनके जो ओनर है वहाँ के
ऑर्फनेजेस के, उन्होंने जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करती थी, पहले के जमाने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करती थी, बच्चे पढ़ने जाते थे किसी गुरु के पास में, उन्हीं के आश्रम में रहते थे, वहीं काम करते थे और वहीं पढ़ते थे। वो गुरुकुल सिस्टम यहाँ पे चालू है बालवन में। तो वो बालवन में जो एक्टिविटीज हुई उसकी पहचान उनको करके दी, और साथ ही में हमारे सारे लियो को पहचान हो गई एक चीज की जरूरत, कैसे चीजों की जरूरत होती है दुनिया में, इस बात का उन्हें एहसास हो गया। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आज फ्यूचर स्टार्स ने ली, ये पहली लियो एक्टिविटी थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे रीजन में। उसके बाद में आप लोग अभी 3 क्लब एक साथ आके एक बहुत अच्छी एक्टिविटी ले रहे हो, विच इज अ सॉर्ट ऑफ ट्विनिंग एक्टिविटीज। जब 2 या 3 क्लब एक साथ आते हैं तो उसे ट्विनिंग एक्टिविटी या जॉइंट एक्टिविटी कहते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आप यहाँ पे कर रहे हैं। और एक क्लब है पुणे आकांक्षा, आज उन्होंने किसी को बुलाया है, किसी एक्सपर्ट को बुलाया है बात करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए। वो एक्टिविटी थोड़ी देर में होने वाली है। और इसके इमीडिएट पश्चात लियो क्लब ऑफ कोथरूड, जो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का होम क्लब है, लियो लायंस क्लब ऑफ पूना कोथरूड, उनका लियो क्लब है, उनकी भी पहली मीटिंग आज होने जा रही है। और लियो अभिषेक एनपुरे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज 6:15 बजे उनकी भी मीटिंग होने जा रही है, और मुझे वहां पे उन्होंने बुलाया है टू रीड समथिंग which is motivational and which is inspirational। तो दोस्तों, लियो का मतलब आप सब जानते हैं, लियो stands for the leadership, experience and opportunity। लीडरशिप इन सर्विस। जब भी आप समाज की सेवा करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी जो काम नहीं कर सकता तो 4 लोग मिलके वो काम करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो काम पहले कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत तिलक महाराज से स्टार्ट हुई, फिर महात्मा गांधी ने उसको कैरी किया। तो कहीं ना कहीं किसी से शुरुआत होना बहुत जरूरी है। तो आपको लीडरशिप लेनी है, आपको कोई भी अच्छा काम जो भी समझता है सूझता है उसकी लीडरशिप लेनी है और वो काम को आगे बढ़ाना है, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। एक्सपीरियंस, आपको अनुभव करना है कि समाज में किस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं और आप उसके अंदर क्या हेल्प कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी, जब भी आपको कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड या लोगों से कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द लियो, LEO, लीडरशिप, एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाट मेक्स अ लियो। एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ लायंस क्लब्स इंटरनेशनल, लायंस में 3 तरह के लोग होते हैं, एक लायंस होते हैं, एक लायनेसेस होते हैं और तीसरे लियोज होते हैं। तो लियो जो है यंगेस्ट मेंबर ऑफ द लायंस इंटरनेशनल। लायंस इंटरनेशनल में अभी आज की डेट में लगभग 14 लाख लोग काम करते हैं। बट आप जो है, आप बहुत सारा एनर्जी लेके आए हैं लायंस के अंदर और आप यंगेस्ट जनरेशन हो। लियोज embody the best qualities of our incredible organizations. They are devoted young people who realize the power of action. आपके अंदर एक्शन की पावर आपको सबसे पहले पता चलती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग सीनियर लोग होते हैं सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं और इसका एग्जीक्यूशन करने में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। आज आपने एक सुबह हमने आपको एक रिक्वेस्ट की थी, कैन वी हैव अ लियो डे सेलिब्रेशन, और आज शाम को हम लोग इतने सारे लोग मिल रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, पावर ऑफ एक्शन। ये लियोस के अंदर कूट कूट के भरी है। टुगेदर लियोस एंड लायंस कैन फॉर्म अ पावरफुल पार्टनरशिप, one of the mutual respect, where the lions learn from the innovative insights of the leos and where leos gain the access to the proven strategies of those who are successful servant in the world for the decades। ये होता है कि हमें नए नए विजन आपसे मिलेंगे लियोस से। लियोस के अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी आइडियाज होते हैं और वो टेक्नोलॉजी में डेवलप होते हैं। तो आपसे हमें आइडिया मिलेगी। और लायंस से आपको क्या मिलेगा? तो लायंस से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, स्ट्रैटेजीज मिलेगी। और एक्सपीरियंस का फायदा तब होता है जब आपको कोई चीज करनी होती है तो आप वो चीज करेंगे, प्रयास करेंगे, गलती करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर गलती करेंगे और आप सीखते जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी अगर आपके साथ में है तो पहले आपको बता देगा कि किस तरह से उस काम को अंजाम देना है। जैसे आज के इस प्रोग्राम का एजेंडा बनाया तो राजेश जी ने आपको बताया एजेंडा किस तरह से होना चाहिए, तो आपका काम आसान हो गया। अदरवाइज क्या होता था आमतौर पे कि आप एक एजेंडा बनाते थे और उस सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता था, प्रोटोकॉल गलत हो जाते थे, वोट ऑफ थैंक्स मिस कर जाते थे। लेकिन एक एक्सपीरियंस आदमी ने आपको कुछ बताया और आपको एक गाइडलाइन दी है। तो यही फर्क होता है। आप हमें विजन देंगे और लायंस आपको स्ट्रैटेजी देंगे और एक्सपीरियंस देंगे। अंडरस्टूड? यहां तक सब ठीक है? दोस्तों, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूं जिसका नाम है, आई विल टेक जस्ट 5 मिनट्स
बट ये 5 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता के जाने वाला हूँ। एक किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक इन द वर्ल्ड, ईट दैट फ्रॉग। अच्छा, इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे इसका नाम ही है ईट दैट फ्रॉग, मतलब आपका जो डिफिकल्ट काम होता है वो सबसे पहले खत्म करो। दिन की शुरुआत आप जब भी करोगे तो जो भी डिफिकल्ट काम है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, वो सबसे पहले खत्म करो और बाकी कामों के लिए फिर आप आगे बढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक हमेशा एक्सक्यूज रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, चाहे वो पढ़ाई का मैटर हो, चाहे खेलकूद का हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो, चाहे अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से मिलने का हो, किसी भी चीज के लिए हमारे पास पहला एक एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम। आपका कोई फ्रेंड आपको कितने दिन से फोन करके बुला रहा है, मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस रहा है, और आप क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव अ टाइम। आपके बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठो, 1 घंटा उनका हाथ पकड़ो, उनसे बात करो, आपका जवाब होता है आई डोंट हैव अ टाइम। आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं कि फुटबॉल खेलने के लिए आओ, क्रिकेट खेलने के लिए आओ, चेस खेलने के लिए आओ, कोई दूसरा गेम खेलने के लिए आओ, आप क्या जवाब देते हो, आई डोंट हैव अ टाइम। सो ये किताब है, ये किताब आप सब लोग पढ़ो, ये बहुत सस्ती किताब है, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, 200-300 रुपए की किताब है, बट इसमें जो चीजें दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम दिन का आपने सबसे पहला करना है और उसकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जाना है। अगर कुछ काम रह भी जाते डोंट वरी, वो दूसरे दिन आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कर लिया है। उसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपकी फैमिली है, आपकी पढ़ाई है और आपका फ्रेंड सर्कल है। दूसरी एक किताब है अग्निपंख, किसकी किताब है, कोई बता सकता है? अब्दुल कलाम, हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। ये रामेश्वरम करके एक बहुत छोटा सा गांव है, कन्याकुमारी के तरफ, तमिलनाडु के अंदर बहुत छोटा सा गांव है, और वहां पे एक बहुत छोटे से घर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई की। इनको बहुत सारे लोगों ने हेल्प की इनके एजुकेशन के लिए, लेकिन इनके अंदर एक फायर थी और उसकी वजह से ये पहले तो एक साइंटिस्ट बने, और साइंटिस्ट में ये ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट में कभी भी शुरुआत होती है FECD, इस तरह से A क्लास तक जाती है वो साइंटिस्ट की रैंक। तो ये A दर्जे के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो हिंदुस्तान की मिसाइल थी अग्नि, आकाश, त्रिशूल, इसको डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हिंदुस्तान के पास एक सबसे बड़ी मिसाइल है जो अग्नि करके, जिसकी 4000 किलोमीटर तक ये लंबा सफर तय करके जाती है और दुश्मन को उड़ा देती है। तो जिसकी खोज, जिसकी डेवलपमेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम ने की थी, और ये सिर्फ एक साइंटिस्ट बन के नहीं रहे, अभी ये अपने सिविल सर्विसेज में भी आ गए, देश की सेवा में भी आ गए, और देश का जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री वो बने। उनकी पूरी जीवनी इस किताब के अंदर है, और ये इन्होंने किताब लिखी है, अरुण तिवारी नाम के एक राइटर है, उनकी मदद से किताब लिखी है, और इसको इंग्लिश में और एक नाम है इसको, फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो विंग्स ऑफ फायर के नाम से है, अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो अग्निपंख के नाम से ये किताब है। ये किताब को आपको जरूर पढ़ना है। एक किताब है और स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने कैसे स्ट्रगल करके हिंदुस्तान से अमेरिका गए और वहां पे अपने धर्म को कैसे रखा, उन्होंने कैसे कहा कि मेरे बहनों, भाई और बहनों, और उस एक शब्द ने कैसे चमत्कार कर दिया। लोग सोचते रह गए कि एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान से आया, जो हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, और वो अमेरिका में आके बोल रहा है मेरे भाई और बहनों, और उसका एक जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो सदियों तक चला। आज 100 साल, 150 साल हो गए, लेकिन आज भी वो वर्ड का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उस वक्त 4 मिनट तक सारी पब्लिक जो थी हॉल की खड़ी होकर तालियां बजा रही थी स्वामी विवेकानंद के लिए, और इस आदमी ने पूरे राष्ट्र के जो युवाओं का निर्माण किया है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो ये किताब है स्वामी विवेकानंद करके, ये आप सब लोगों से विनती है कि ये किताब आप जरूर पढ़ो। चौथी एक किताब है सदगुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप और जैन हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन हर धर्म को एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। 300-400 साल पहले सिख धर्म की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। और उस वक्त जो मुगलों का आक्रमण होता था या दूसरे कंट्रीज से जो आक्रमण होता था,
अफगान लोगों का, उससे बचाने के लिए धर्म बनाया और उन्होंने बहुत सारी अच्छी गाइडलाइंस इसके अंदर दी है। उसमें उन्होंने एक स्टोरी है छोटी सी, उनका एक शिष्य था, वो बहुत प्यारा था, बहुत करीबी था, तो जाहिर है कि वो समझता था कि मुझे सब कुछ आता है। कई बार ऐसा होता है कि 10 शिष्य है किसी गुरु के, लेकिन एक शिष्य जो होता है वो हमेशा गुरु के करीब होता है, वो उनकी खान पान की बात करता है, उनकी दवाई की बात करता है, उनकी ट्रैवलिंग की पूरी बात करता है, सब ख्याल रखता है। तो जाहिर है कि वो गुरु के काफी करीब होता है और उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो इनका एक शिष्य था, वो शिष्य बहुत घमंडी हो गया था और बाकी सब लोगों से उनसे बहुत परेशानी थी। तो एक दिन ये बात जब गुरु नानक जी के पास पहुंची, तो गुरु नानक जी ने उसे एक काम किया। गुरु नानक जी ने उसे एक सुई दी और कहा कि मैं एक दूसरे शहर में जा रहा हूं 10-15 दिन के लिए, वापस आऊंगा, ये सुई तुम्हारे पास रखो, और अगर मानो कि मेरी मौत हो गई, अगर मानो कि मेरी मौत हो गई तो मुझे अगले जन्म में ये सुई दे देना। शिष्य था, उसे ये बात तुरंत समझ में नहीं आ गई। रितु जी का आ गई, देखो रितु जी हंस रही है अभी, रितु जी के तुरंत समझ में आ गई। एडवाइजर ऐसे होने चाहिए जिनको बात तुरंत समझ में आ जाए। तो उन्होंने वो सुई रख ली और फिर 2 दिन गए, 3 दिन गए और गुरु नानक जी नहीं आए। तो उसे बहुत डर होने लगा कि क्या हुआ नानक साहब के साथ में, कहीं डकैती नहीं हो गई रास्ते में या किसी ने मार तो नहीं दिया, क्योंकि नानक जी जो थे उन्होंने एक पूरा धर्म खड़ा किया था और उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। खास करके मुस्लिम लोग उनके काफी दुश्मन बन गए थे उस वक्त के जो शासक थे, तो वो हमेशा चाहते थे कि गुरु नानक जी को मार दिया जाए। तो ये जो शिष्य था वो उनका बहुत प्यारा था और जान से ज्यादा प्यार करता था नानक जी से। उसे बड़ा डर लग रहा था कि अभी नानक जी का क्या हो गया। नानक जी जितने दिन में आने वाले थे उससे बहुत लेट आए, और जब आए तो उसे बुलाया और उससे पूछा क्या तुम्हारे पास सुई है? तो उसने कहा है, और लेकिन मैं बहुत डरा हुआ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं आपको ये सुई कैसे लौटाता दूसरे जन्म में। तो नानक जी ने कहा कि तेरे पास एक मैंने सुई दी, तू मुझे अगले जन्म में सुई नहीं लौटा सकता, तो तुझे किस बात का घमंड है? आज तुझे अपने ज्ञान का घमंड है, मेरे पास होने का, मेरे करीबी होने का घमंड है, किस बात का घमंड है? जो कुछ है इसी मिट्टी में मिल जाएगा, तेरे साथ ही यहाँ से सब खत्म हो जाएगा। तो आज से कभी घमंड मत करना, सब लोगों के साथ प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना। एक बहुत बड़ी सीख गुरु नानक जी ने उस वक्त उसको दी। तो मुझे यही लगता है कि जीवन में किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, और जो नेचुरल है किसी के लिए हमें बदलना नहीं। लायंस में मैंने आमतौर पे देखा है, लायंस में, लियोज में या लीडरशिप में लोग एक राय बनाते हैं आपके बारे में, वो राय आप तक पहुंचाते हैं और आपको लगता है कि मुझे बदलना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो आपका कोर वैल्यूज है, जो आपके संस्कार है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपके थॉट विचार है, उन्हीं वजह से आप यहां तक आए हो, तो यही वजह है आपको आगे लेके जाएगी। आज राजेश जी अग्रवाल है या राजेश जी बंसल है, इतना बड़ा क्लब चलाते हैं, इतनी सारी परमानेंट 7 परमानेंट एक्टिविटीज उन्होंने खड़ी करी 3 साल के अंदर। कई सारे क्लब है 15-15 साल हो गए, इनका एक परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, जबकि आपके क्लब का 3 साल में 7 परमानेंट एक्टिविटी खड़ी हो गई। अब इसके पीछे का रहस्य यह है कि इनके अंदर कुछ कोर वैल्यूज है, और जो बचपन से इनके अंदर है, बचपन से इनके अंदर वो कोर वैल्यूज है, समाज के प्रति लगाव है, काम करने की इच्छा है, पैशन है और स्पीड है, कोई भी चीज करने की स्पीड है। तो जो चीजें उनको यहां तक लाई है वही चीजें उनको आगे भी लेके जाएगी। किसी ने कुछ कहा और उन्होंने अपने आप को बदल लिया, ये नहीं होना। अगर वो अपने कोर वैल्यूज पे कायम रहते हैं, कोर वैल्यू जैसे कि मैंने उस दिन कहा था, कोर वैल्यू हमारी जड़ है और टहनियां है वो हमको आगे लेके जाती है। तो कोर वैल्यू को हमेशा जमीन से चिपक के रहना होता है, पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए, सर चाहे कितना भी आसमान में हो। आपके दिमाग में कितने भी बड़े थॉट्स हो, कितने भी बड़े आइडियाज हो जीवन में, लेकिन जो आपके पैर है वो हमेशा जमीन से जुड़े होने चाहिए। आप जीवन में कितने भी बड़े कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके माता पिता है, जो आपकी कोर वैल्यूज है, जो आपके संस्कार है, उसके साथ हमेशा आपको टिके रहना है, उसको कभी बदलना नहीं है। और जिन चीजों की वजह से अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्हीं चीजें आपको आगे लेके जाती है। जिन चीजों की वजह से, आपके संस्कारों की वजह से लोग आपसे जुड़ गए हैं, वो लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं। अगर आप बदल जाओगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी बदल जाएंगे। अगर आज आपके साथ अच्छे लोग हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, कल को अगर आप बदल जाओगे
तो चोर डाकू लोग आपके साथ आएंगे और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। अगर बढ़ भी जाओगे तब भी आपको इस बात का एहसास रहेगा कि मैंने अच्छे लोग खो दिए। क्यों खो दिए? क्योंकि आप बदल गए। तो अपना जो अस्तित्व है, जो अपनी पहचान है, जो अपनी वैल्यूज है, उस पर हमेशा टिके रहना है। लगता है मैंने बहुत सारा बोल दिया है दोस्तों। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जीवन में जो भी करो, अपने जीवन में एक ताज एक्सपीरियंस लाओ। आप में से कितने लोग ताज में गए मुझे पता नहीं, बट एक बार अगर मुंबई जाओगे तो आप ताज में जरूर रुको। ताज होटल, ये ताज होटल बनने की एक बहुत बड़ी कहानी है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई 5 स्टार होटल नहीं था जहां पे हिंदुस्तानी लोगों को एडमिशन दी जाती थी। अंग्रेज लोग हमेशा हिंदुस्तानी लोगों को, वहां पे एक बोर्ड रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अंग्रेजों के टाइम पे, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री 1947, there used to be a name plate which says dogs and Indians are not allowed. हमारे हिंदुस्तान में एक जब ये पता चला टाटा को, तो उन्होंने अपना खुद का एक 5 स्टार होटल खड़ा किया। और वो 5 स्टार होटल नहीं है, वो आइकॉनिक बिल्डिंग है, वो अपने आप में लीजेंड है। तो आप जीवन में एक बार तो भी ताज होटल में जाओ और ताज होटल में रुको, आपको पता चलेगा कि हर चीज में एक्सीलेंस कैसे होता है। इसे कहते हैं ताज एक्सपीरियंस। हमारी बिजनेस कोचिंग की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ताज एक्सपीरियंस। कटलरी से लेके बेडशीट से लेके हर चीज में, उनके जो स्टीवर्डेस होते हैं, उनके जो रिसेप्शन होते हैं, हर चीज में दे आर एक्सीलेंट। अगर आप 26/11 का अटैक अगर देखोगे, जब अजमल कसाब और उनके साथी जब अटैक किए थे ताज पे, उस वक्त क्या हुआ था? जो ताज में जो एम्प्लॉय थे, जो वेटर्स थे, वो भाग सकते थे, वो किचन के रास्ते से भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने सारे गेस्ट को इकट्ठा किया और किचन में छुपाया उनको। आप अगर ये ताज के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज बनी है, पिक्चरें बनी है, आप जरूर देखो, उसमें आपको दिखेगा। और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन पैसेंजर्स की, उन टूरिस्ट की, उनके विजिटर्स की रक्षा की थी। क्यों की थी? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ताज ग्रुप के अंदर ही वैसी हुई थी। इसे कहते हैं ताज एक्सपीरियंस। हर चीज में ताज एक्सपीरियंस। ताज का मतलब है टॉप ऑफ द क्लास। हिंदुस्तान के किसी भी होटल में जाओ और मुंबई के ताज होटल में जाओ, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं एक दिन तो भी आप बॉम्बे नेक्स्ट टाइम जाओगे तो ताज में रह के आओ, तो आपको पता चलेगा हर चीज में वो लोग कितना माइन्यूटली सोचते हैं और कितना अच्छा एक्सपीरियंस एक पैसेंजर को देते हैं, वहां पे रहने वाले इंसान को देते हैं। तो आपके जीवन में भी जो भी काम करोगे तो ताज के जैसा करो। कोई छोटा मोटा काम नहीं करना। आप लियो के अंदर काम करें, कोई भी एक्टिविटी करो, एकदम प्लान करके, सिस्टमेटिकली, टाइम फ्रेम डिसाइड करके, सबको कॉल करके, इनवाइट करके प्रॉपरली करो। और वो एक्टिविटी करो जो आपके लोकल कम्युनिटी की नीड है। आपको अच्छा लगता है इसलिए कोई एक्टिविटी मत करो, ये देखो कि उस कम्युनिटी की नीड क्या है। अभी हाल ही में हमने गोवा में एक एक्टिविटी की थी, जॉइंट एक्टिविटी। वहां पे गोवा के लायंस क्लब ने हमारे साथ कुछ शेयर किया और हमने भी कुछ शेयर किया। तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे 15 लायंस स्कूल है। तो वो प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने वहां के जो रीजन चेयरपर्सन है समीर मालकर करके, उनसे बात की और उनको पूछा कि इतने स्कूल की जरूरत क्या है यहाँ पे, लायंस स्कूल की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतने रिमोट छोटे छोटे प्लेसेस है। आपकी नजर में गोवा मतलब पैंजिम, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, मापसा, यही होता है, बट गोवा एक स्टेट है अपने आप में, दूर दराज का। मछुआरे रहते और वहां पे कोई जाता नहीं, गवर्नमेंट तक जाती नहीं, वहां पे कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हमने लायंस इंटरनेशनल ने स्कूल खोले हैं, लायंस स्कूल करके, और 1-2 नहीं 15 स्कूल खोले हैं और 20-20 साल से वो स्कूल लायंस के माध्यम से चल रहे हैं। तो क्या हुआ, वहां पे वो नीड है। तो जो कम्युनिटी की नीड है, जो लोकल लोगों की नीड है, वो करो। वो मत करो जो आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे, वो मत करो। जो कम्युनिटी की नीड है वही एक्टिविटी आपको करनी है, और उसके लिए आपको सर्वे करना है, अपने कान खुले रखनी है, अपनी आंख खुली रखनी है। हमेशा 2 चीजें ध्यान में रखो, भगवान ने हमें आंख दिया है, मुंह दिया है और कान दिए। इसमें से 2 चीजों का जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने आगे बढ़ोगे, आंखें और कान। कान खुले रखो कि जरूरत कहाँ पे है वो सुनने को मिले आपको, और आंखें हमेशा देखते रहो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, टू सर्व द कम्युनिटी, टू लर्न समथिंग। अपने आप को भी अगर हम सेवा करने चाहते हैं, खुद की सेवा करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके मौके कहाँ पे है वो हमेशा आपको खोजना है कि मेरे जो लियो कलीग्स हैं उनकी डेवलपमेंट में कैसे कर सकता हूँ, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दे सकता हूँ, एक बॉन्डिंग कैसी हो सकती है, एक अच्छी पिकनिक कैसे हो सकती है हमारे साथ में जाके, या हमारा जो पेरेंट लायन क्लब है उनकी किसी एक्टिविटी में कैसे हम मदद कर सकते हैं। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आंख का इस्तेमाल करना है, कान का इस्तेमाल करना है, और मुंह का कम से कम इस्तेमाल करना है। जो आदमी जीवन में सबसे ज्यादा किताब पढ़ता है वो आगे जाता है,
दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो मतलब पहचाने कैसे जाते हैं लोग, आदमी का चरित्र दो तरह से पहचाना जाता है। एक होता है वो किस तरह की किताबें पढ़ता है, और दूसरा वो किस तरह से लोगों के साथ रहता है। तो किताबें मैंने आपको आज 4 किताबें बता दी है, उसमें से अगर पॉसिबल है तो पूरी चारों किताबें खरीद के पढ़ लो, या कम से कम एक किताब पढ़ लो। दूसरी है संगत। तो आपकी संगत बहुत अच्छे लियोस के साथ रही है, बहुत अच्छे लायंस के साथ रही है। इस संगत को स्ट्रांग बनाओ, तब एक आपकी पहचान बनेगी, आपका एक चरित्र बनेगा। कोई भी कल को उठ के बोलेगा हित बंसल को मैं जानता हूं, वो एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग है, हमेशा हर किसी को मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, छोटों को प्यार देता है, और हर काम में आगे रहता है, और सबको साथ लेके रहता है। ये आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप किताबें चुनोगे और अपने दोस्त चुनोगे। ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखो। द वे you choose the people and the way the kind of books you read define your character. So इन्हीं दो चीजों के साथ मैं अपना ये जो ओपनिंग रिमार्क था, जो गाइडेंस था, यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, राजेश जी ने बुलाया यहाँ पर, एक बात 2-4 शब्द कहने का मौका दिया, और मेरे लियो दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। आज संख्या 15 लोगों की है, कम है, बट कोई मलाल नहीं है, जितने हैं अच्छे हैं। जो आए सीखने के लिए आए, जो नहीं आए वो अगले बार आएंगे, ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी यहाँ पर। श्योर सर, श्योर मैम। इतना बढ़िया सेशन ये रहा, ये भले ही कम लोगों का सेशन होगा, बट ये पिछले 10 मिनट में जो हम लोगों ने सुना, हित, आई एम मच एल्डर टू यू, मैं आप लोगों से काफी बड़ी हूँ, बट आई एम रियली प्राउड दैट यू ऑल आर लीडिंग सच ब्यूटीफुल यूथ क्लब्स। और जो अभी रविंद्र सर ने बोला, इसको प्लीज ध्यान देना। मेरी दिल से ये रिक्वेस्ट है कि ये सारी बातें जो सर ने अभी बोली हैं, आप लोग प्लीज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। हम लोग अपनी जिंदगी में वो वाले पड़ाव से आगे निकल चुके हैं जहां हम लोगों को ये सारी क्या बोलना चाहिए, मक्खन मलाई खानी चाहिए थी अपनी लाइफ स्मूथ करने के लिए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल लेक्चर रविंद्र सर, थैंक यू सो मच। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू बिकॉज मैं शायद बाकी सबको चिल्ड्रन बुला सकती हूँ, अभी मैं आप लोगों से सबसे बहुत बड़ी हूँ, बाकी लोगों की नहीं, यंग क्लब की बात कर रही हूँ। The way Ravindra sir has inspired me to do better things. I am amazed by the way he speaks and what he speaks. इन्होंने जो टाइम का यूज किया है, हमें 4 किताबें बताई हैं, हमें जो लेसन्स बताए हैं, एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जो सिर्फ बोलने के लिए यूज किया जा रहा था। पूरा टाइम जो उन्होंने बोला है वो सॉलिड ज्ञान है तुम लोगों के लिए, प्लीज यूज करो। ओके, एंड आई वांट टू रियली थैंक राजेश बंसल सर। उनसे सीखने के लिए है परसीवरेंस, हार्डवर्क, और रविंद्र सर जो आपने कहा जमीन पे खड़े रहने की शक्ति, जमीन पे खड़ा रहना के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है, हवा में उड़ने में कुछ भी नहीं लगता है। आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपको हवा में उड़ाना चाहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप हवा में उड़ने लायक हुए मतलब आपका वजन रह ही नहीं गया। जो शक्ति चाहिए वो जमीन पे टिकने के लिए चाहिए। आप अपनी रूट्स से प्राउड होइए, हाथ मिलाइए, आगे बढ़िए। हम सब जितने भी लोग हैं, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द यूथ क्लब, with small children, and we would love to help you. Please, we need guidance and we expect very very good ideas coming from you. Thank you so much. I'm very very proud to be the advisor in this Leo Club, and Rajesh sir, thank you so much for making me a part of this family. Ravindra sir, thank you so much for inspiring me. Thank you. Thank you Ravindra ji, thank you. धन्यवाद। Thank you, Ravindra Gola sir, for your guidance and your blessings. I think today we are not in quantity, but we are getting a good quality today. So now I shall request Lion Tane Agarwal to give introduction of District PRO Rajesh Agarwal.
Oh, I guess he is there in the meeting. Yeah, yes, he is there. Tanay Agarwal? Yeah, just a minute. Yes. जब तक तने 1 मिनट ले रहा है तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रविंद्र सर ने ताज होटल की इतनी बढ़ाई कर ली है तो होपफुली नेक्स्ट लियो इंटरनेशनल डे सर ताज इंटरनेशनल में ही कर लेते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम एक कॉफी ताज आप आएंगे तो हम लोग आएंगे। वो ताज एक्सपीरियंस आपके साथ तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। राजेश सर, हम उस हार्बर क्लब में बैठेंगे जहाँ से पूरा समुंदर दिखता है, और जहाँ पे जमशेदजी टाटा ने या रतन टाटा ने बैठ के टाटा एम्पायर खड़ी की है, उसी हार्बर क्लब में बैठ के हम लोग कॉफी पियेंगे और लंच करेंगे, पक्का। मेरा छोटा सा सजेशन है, अगर आप दोनों परमिशन दे तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। जी जी जी। हम हमारे लियो क्लब के जो मेंबर हैं, इनके लिए लियो इंटरनेशनल का बॉम्बे ऑफिस विजिट का एक प्रोग्राम रखते हैं। और उसी प्रोग्राम के ड्यूरेशन में उनको ताज होटल के अंदर, जैसे आपने बोला, जो जहांगीर डेक है उसमें टी कॉफी हाई टी करा के लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया थॉट है। कोविड की बात करिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे जा नहीं पाएंगे। आई डोंट वांट टू मिस दिस। Not now, after COVID. Yes, after COVID, please. We'll plan it in February or March. Okay. Done. हाँ, तनय जी, please. Yes, sir. So, good evening, everyone. Myself, Lion Tanay Agarwal, and it's my honor to introduce before you the Charter President of Lions Club of Pune Agrasen and our current district PRO and Leo advisor for Leo Club of Pune Agrasen for Little Champs and Katha Play. This personality, he's been a Leo himself in his younger days, and he has a long experience in Lionism and many other social organizations for social services. And right now he is in the forefront for forming the Lions Trust and for various permanent projects of Lions Club of Pune Agrasen. So right now he's actively involved as an advisor and as a mentor, as a guider. So I present Mr. Lion Rajesh Agarwal. And Rajesh sir, I please request you to guide us with your kind words. I'm going to unmute you now. Thank you, Tanay. Am I audible? Yes, yes. Great. Thank you for introducing me. As Ravi sir has already said, the protocol has been set, so I will not name everyone. I really thank Ravi ji for inspiring us all to celebrate this International Leo Day. As you requested, I will not guide because already we have got a very good guidance from Ravi sir. I'll just share one of few experiences about Leo. I joined Lionism in 1994. 1995, I was the district Leo advisor. And I'm glad to say that many Leo members at that time who had just joined Lionism through Leo are now very active in the district at various levels. And you'll be surprised to know that one of my Leo member at that time was Raj Muchal, who is now, as you all know, he has been the past district governor, and he's not only leading the district, but at multiple and international level, he is doing a great job. So why I wanted to say this is, even if you join a Leo club, that doesn't mean that we are into the junior league. Leo is the platform to become a lion, to become a great lion, to become a great leader, as already Ravi sir has said. I'll just emphasize on the vision that we have, as already three Leo clubs have been formed. I am the main job for me given is to contact maximum Leo members. As you all know, we are trying to get around 8 to 10,000 Leo members in next few months. This Leo club of Pune Agrasen, would be the largest Leo club in the world. A great achievement, not only for our club, our region, our zone, but our district. And we'll reach there. We are already on the mark.
The second point is not only numbers. Numbers is a first thing that we have, but we need to have great planning. So already the structure has been formed. We'll have around 8 to 10 verticals in our Leo club, because to cater around 8 to 10,000 members is not easy. So we'll have 8 to 10 verticals, with each vertical looking after one field of development, maybe personality, education, and business development, and various other things, medical, education, and purely social. So that is the main job that has been given to me by my club, and I really feel that we are working on the right path. I congratulate all the three presidents of the three Leo clubs with us. We are there to guide them. We'll be with them. Lions Club of Punagrasen has already emphasized. We have a special budget for them. So wherever they need money, wherever they need guidance, support, we shall be there. As it is, our president, Lion Rajesh Bansal, is also very fond of the Leo movement, and he is also working on the same grounds. As a mentor of the club, when we plan for next 5 years, the incoming presidents will be guided to continue with this Leo movement, not only to sustain them but to grow them. So that will be my job, and I think we'll be working on the right track. Uh, as you know, two of the Leo clubs are recently formed, and today is, I think, the first day of the activities. Today morning, they had one free physiotherapy camp organized at our diagnostic center. In the evening at 7:30 today, they are going to distribute masks at three various places at Chandanagar. It will be a joint activity between these three clubs. The three places is Sai Baba Temple, the Bhaji Market at Chandanagar, and the main market of Chandanagar. So at three places they'll be distributing masks. So I think it's a great activity done by a new club. These three clubs will be joining there. I thank Rajesh Bansal for taking the initiative. Rituji, you have been mentor for many organizations. I've been seeing all your activities, and really this club can go international, I think, very soon. So again, I thank all, especially Raviji, for guiding us time to time, and really working for these organizations. Thank you once again, and I congratulate and I emphasize that we'll always support all you all. Don't worry, all the Leo clubs, you just work it out, you just plan it out, just tell us what you want and we'll be there. Thank you. Thank you, Rajesh ji. Always be our mentor and guide. We are blessed and having your word. We are very blessed to have this all here. Thank you. Hi. Thank you, Rajesh sir. Now, I request Leo Kashish Bansal to introduce our zone chairperson, Lion Rajesh Bansal. Kashish? Yeah. Am I audible? Please check. Am I audible? Hello. Yeah, Kashish, I guess there is a network issue. Please check your Wi-Fi or something. Am I audible now, sir? Perfect. A very happy evening to all Lions and Leo dignitaries present today. I am Leo Kashish Bansal. Firstly, wishing you all a very happy Leo International Day. It's my privilege to introduce our Honorable President of Lions Club of Pune Agrasen, Lion Rajesh Dwarka Prasad Bansal. Lion Rajesh Dwarka Prasad Bansal is also the Zone Chairperson of Region Ganga Zone 2. He joined Lionism in the year 2017 as Charter Secretary and the founder member of Lions Club of Pune Agrasen. After recognizing his hard work and dedication towards social activities, he was selected as president, and now he is also the zone chairperson. His consistent efforts and dedication towards Lionism has been highly appreciated, and he was awarded the following recognitions: Excellent Secretary Award, Best President of District, Best Zone Chairperson of District.
He has also been honored by the Lions International Club's Excellence Club Award and Premier Sentinel Award. A brief information. Lion Rajesh Bansal has completed his Masters in Commerce and has more than 3 decades of experience in business and social activities. It is an honor for him to receive an inheritance of social activities from both his father and grandfather, which he has now passed on to his children as well. His wife, Lion Neha Bansal, is also actively involved in Lions Club along with him and supports him actively. His 2 sons are Leo Heath Bansal, the president of Leo Club of Pune, Agresti, and his youngest son is also Leo Shri Bansal. It's an honor to have you with us today, sir. We wish you all the best and may you continue to inspire us to serve the mankind through Lions Club activities. Thank you. I have a small request to hit the presiding officer. May I talk for 1 minute? हित, अगर आपकी परमिशन है तो क्या मैं लीव कर सकता हूं, क्योंकि लियो क्लब ऑफ कोतवाल का एक प्रोग्राम है, मुझे वहां पे इनवाइट किया हुआ है। थैंक यू कशिश। राजेश जी, आपकी परमिशन तो मैं लीव कर सकता हूं क्या? मुझे एक दूसरी मीटिंग में जाना है, लियो की मीटिंग है। किससे बात कर रहा है? हेलो। हाँ राजेश भाई। हाँ, am I audible? Yes, yes. Okay. मैं लीव कर सकता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, दूसरे मीटिंग को ज्वाइन करना है। Is it possible that I can leave? Yeah, no problem. Okay, thank you so much. Wish you a very happy birthday, Rajesh bhai, once again. God bless you with all the happiness. And हम सबकी तरफ से आप ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही इंस्पायरिंग बने रहिए हम सबके लिए। Keep growing in your life. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपने फिर से एक बार सस्पेंस खोल दिया। और सभी लियोस को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल लियो डे थोड़ा स्मॉल हुआ, अगले साल बड़े जोर के साथ करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। यस सर। बाय। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Rajesh bhai, a very, very happy birthday. Thank you, Bobby. And especially, I just want to say one thing. Many congratulations to Rajesh ji and Neha ji for bringing up such wonderful children. I am really proud to know you both as excellent parents of this excellent boy, Hit and Shreya. Hit is, I really want to say he is following your footsteps wholeheartedly. And I really bless him with all my heart. No, he did FY. आवाज कट हो रहा था, पता नहीं। नहीं, वाईफाई चालू है। नेट तो चालू है। राजेश सर, आपके नेटवर्क में इशू दिख रहा है, वॉइस नहीं आ रहा था। हाँ, नेटवर्क इशू थोड़ा आया बीच में। आपका चाहिए तो वीडियो ऑफ कर दो, अगर वीडियो ऑफ करोगे तो बैंडविड्थ आ जाएगा। ओके, अभी आपका आवाज आ जाएगा। हाँ, क्लियर है। Am I audible? Yeah. Yes. Clear. थैंक यू रितु जी। सभी मंच के ऊपर उपस्थित लायन लीडर्स एंड माय लियो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट, हैप्पी लियो डे। जैसे रवि गोलार जी ने बताया कि लियो का मीनिंग है लीडरशिप, एक्सीलेंस, लीडरशिप, एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमको यही को सीखना है और इसको अपने जीवन के अंदर उतारना है। उन्होंने एक स्टोरी गुरु नानक जी की बताई कि उनके एक शिष्य को घमंड हो गया था
मैं आपको एक ओबीडेंट स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ, गुरु नानक जी के जीवन की। गुरु नानक जी के जीवन में लहना नाम का उनका एक शिष्य था और उनका बेटा भी था। दोनों साथ साथ में उनकी हर शिक्षा का पालन करते और साथ में चलते। एक बार आधी रात को गुरु नानक जी उठे और उन्होंने अपने बेटे को बोला, कितना बजा है? तो बेटे ने बोला, अभी पैर को मुझे चेक करना पड़ेगा और फिर मैं बता सकता हूँ। उन्होंने लहने को बोला कि कितना बजा है? लहने ने बोला, बिगर कोई समय गलाए कि जितना आपने बजाया होगा, जितना समय आपने किया होगा, उतना ही बजा है। एक अच्छा काकी, एक अच्छा शिष्य तब हीरा बनता है जब वो गुरु की बात को जपता है। ब्यूटीफुल स्टोरी सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको गुरु की बात को एज इट इज एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर पूरी श्रद्धा से, पूरी अपनी क्षमता से चल पड़ना है। जब आप इतना डिवोशन, इतना सेक्रीफाइस, इतना समर्पण अपने गुरु के प्रति दोगे तो आप गुरु के जैसे बने बिगड़ रह नहीं सकते। ये आप सबको लियो डे के दिन पे मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज। अब हम लोग आते हैं लियो डे के ऊपर कि ये लियो संस्थान क्या है और कब शुरू हुआ। ये प्रेसिडेंट हित बंसल ने बताया, फिर उसमें कुछ गुणों को शुभ ने बताया। इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से रितु जी ने और मेरे नन्हे दोस्तों ने हमारे भारत के अंदर की संस्कृति और इसके अलग अलग जो गुण है उनको दर्शाया। इसके अलावा कमर्शियल व्यू भी है इसका। लियो क्लब, लियो क्लब से देखो हम सभी को हर समय हर तरह का व्यू मालूम होना चाहिए। कमर्शियल व्यू क्या है? तो हमारे अंदर नेतृत्व गुणों की पैदावार इस लियो की तरह से होती है। मतलब वी कैन सी इन लीडरशिप वैल्यूज, लीडरशिप के गुण को क्या बोलते? ओके। इसी तरह से जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई करने के लिए जाना है तो अगर आप लियो मेंबर होंगे तो उसके आईडी की वजह से आपको बहुत आसानी से विदेशों के वीजा, स्टडी वीजा मिल जाते हैं। आपको प्लेसमेंट के लिए भी इंटरनेशनल के अंदर अलग अलग जगह पे काम के लिए बहुत इजीली, इफ यू आर लियो मेंबर, लायन मेंबर, यू विल गेट वेरी इजीली। साथ ही आज आप पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस समय आपको सर्वप्रथम कैसे रहना है, इसके अलग अलग गुणों को लियो क्लब बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे सिखा देता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं उम्र की 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। जो माँ बाप ने सिखाया, जो ताऊ चाचा ने सिखाया, बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से किया। लॉकडाउन में मुझे लायन लर्निंग सेंटर से पे, जो हमारा लायंस ग्रुप है, इसका LLC करके कोर्सेस है। अगर हम उसको पैसों में तोले तो 25 लाख रुपए के कोर्स फ्री में उपलब्ध है। 35 कोर्सेस है। तो उन कोर्सेस को करने का मुझे मौका मिला। लॉकडाउन में घर में बैठे थे, फ्री थे, तो एक एक करके कोर्सेस को किया। जब वो कोर्सेस किए तब पता चला, अरे अपन ने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है, मास्टर डिग्री है, लेकिन इतना नॉलेज अभी तक नहीं आया था जो नई बात मैंने इसमें सीखी। तो मैं भी आप लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब आगे बढ़िए, लाइनिज्म, लियोइज्म के थ्रू अपने आप को गढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को अच्छे से संवारते हैं। आज लियो डे है। लियो डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे अपने 4 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय लाइनिज्म। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस LLC वाला फैक्ट। आई थिंक हम सबको पता होगा या शायद हम सब ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। हम लोग डेफिनेटली इसका फायदा उठाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग
us all inspired. Yeah. Thank you, Ritu ji. Hit. Yes. Now next. Now I shall request Leo Kashish Bansal to introduce our zone chairman, Lion Rajesh Bansal. हित कशिश का स्पीच हो गया है. Heat can be, I think, internet. Hit after that, next hit. I think you should also switch off your video because that tip from Tane has really worked for Rajesh sir. Switch off your video and only do the audio. Thanks Tane for that tip. I think I'm going to use it very often. Yeah. So Hit, you can proceed now. Now we shall play a housey. Is everyone there to play a housey? How many of all vote for this housey? Raise your hands by the reaction, thumbs up, then I can know how many are there to play the housey. सभी के वीडियो बंद है तो नहीं पता चलेगा तुमको. सब लोग शब्द में बताएं यस और नो. Heath, kindly excuse me. I will not be able to join you on this. I have to leave. But thank you so much, Heath. You are an excellent leader and an excellent person. Ritu, Thank you so much. Ritu, I will request you for vote of thanks. Sure, sir. Will you do vote of thanks for today? Yes, sir. Definitely. Please, Ritu. Thank you. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Yeah. Okay. I hope I'm audible with the video. Yeah. Yes. So, as I have been given the opportunity for saying the vote of thanks, it's not only an opportunity, it is a pleasure to thank you all. And on behalf of the Leo Club of Pune Agrasen, and हम सब इन पुणे अग्रसेन के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. I think राजेश अग्रवाल जी, thank you so much. रविंद्र गुलार जी अभी दूसरी मीटिंग में बिजी हैं. राजेश बंसल जी, thank you so much. And I would like to extend this time a very special thank you to Tanay Agarwal and Heath Bansal and our Dhanashri, right? Dhanashri and all the other Leos who have joined today. It was great interacting with you. आप सबने अपना time निकाला इस for such a beautiful session. Thank you so much. And we really hope next time we bring to the platform a lot more substance. And I am really happy to be with you all. A very, very special thanks to Rajesh Bansal ji. A very happy birthday to you also. A very special thanks to Rajesh Agarwal ji. आपका इतना सारा ज्ञान जो हमें मिला है, we will always keep that in mind. And on this note, I would like to end the meeting today. Thank you.
Bye all. Good. Bye bye, sir. Enjoy your birthday. Thank you. हाँ, शब्बा खैर वाले Yeah, Sachin bhai. So, my dear Leo friends, I guess today, my dear Leo friends, as today we have crossed the time limit. So I dearly, with all the sorrow, request you. So can we skip the housing? Yeah, sure. We can. I need skip some the replies, please. Housey one. Hit, I will end the meeting now. Is it okay? So I call today's meeting for adjourn. All right. Thank you, Heath. I'm ending the session now.